Hello everyone, welcome to STUDIFYSUCCESS. So today we are going to cover the part 2 of chapter 3 of history class 10th, and the chapter name is the making of global world. तो हमने जो part 1 कवर किया है वो आप सबको YouTube पे हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था कि ग्लोबलाइजेशन इज़ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इमर्ज सिंस 50 years, and to understand making of global world we have to understand the history of trade, migration and people search for work and movement of capitals। और उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे? प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड सी and precious metals, particularly silver, from mines located in Peru. World economy takes shape, role of technology and 19th century between 1815 to 1914। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। So we have discussed that travelers, traders, priests and pilgrims travel vast distance for carry goods and money, and Silk Route were regarded as important route link distinct after European sailor found sea route to Asia and America, Indian continent known for postal trade with goods, people and customers, precious metals, particularly silver, from mines located in Peru, and world economy takes shapes, abolition of corn law under pressure from landowners, group of government restrict import of food grains after corn law were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply as food price fall, consumption in Britain rose. And the role of technology, it had a great impact on transformation of 19th century world, such as railways and telegraph. Refrigerated ship greatly helped to transport the perishable food items. It greatly facilitated the shipment of frozen meat from America. And in 19th century, between 1815 to 1914, in 19th century, economic, political, cultural and technological economic, political, cultural and technological factor interact in complete ways to transform relations। तो हमने ये सब चीज़ें हमारे पार्ट 1 में डिस्कस करी थी, एंड टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इंटर वॉर इकोनॉमिक, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन एंड MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। We will cover these 3 topics and new international economic order NIEO। So let's start। तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द इंटरवॉर इकोनॉमिक। द इंटरवॉर इकोनॉमिक you will see on your screen। What was that? First World War was mainly fought in Europe। पहली वर्ल्ड वॉर जो थी वो यूरोप में लड़ी गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought between 2 power bloc, 2 ऐसे शक्तिशाली देशों के बीच पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। दिस वॉर वॉज लास्टेड फॉर 4 years, और जो ये वॉर थी ये लास्ट 4 years तक लड़ी गई, एंड ये काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक ये वॉर रही। 4 साल काफ़ी होते हैं। सो दिस वॉज द इंटर वॉर इकोनॉमिक के अंदर जो हमारी इंटर वॉर चल रही थी वो ये थी। एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज़ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज़ NIEO। सो most developing countries did not benefit from fast growth of Western economies in 1950 and 60। Most developing countries, जितनी भी developing countries थी, जैसे कि चाइना, जापान, जितनी भी ये कंट्रीज़ थी, ये नहीं चाहती थी कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उनको बेनिफिट मिले या फिर उनकी फास्ट ग्रोथ हो। और ये कब की बात है? 1915, बिटवीन 1915 एंड 60। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ चाइना एंड जापान जैसी थी, वह नहीं चाहती थी कि वेस्टर्न इकोनॉमिक की फास्ट ग्रोथ हो या उन्हें कोई भी बेनिफिट मिले। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप। उन्होंने अपने ही खुद के ग्रुप्स भी बना लिए थे। तो ये था हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। नाउ वी विल डिस्कस ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिसाइट्स, a conference was held by July 1944 at Bretton Woods in USA। जो हमारे एक्सटर्नल सरप्लस या डेफिसाइट्स, जो बाहर की हमारी एक्सटर्नल कंट्रीज़ के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो सब हेल्ड किए गए जुलाई 1944 में एट ब्रिटन वुड्स इन USA।
यूएसए के ब्रिटन वुड्स में जुलाई 1944 में कॉन्फ्रेंस की गई एक रिलेटेड टू एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसाइट्स। द पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉन एज ब्रिटन वुड्स सिस्टम। ब्रिटन वुड्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? द पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। पिछली जितनी भी वॉर रह चुकी हैं उसमें जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाए गए थे उन सब सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना फिर से, उसको हम ब्रिटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक रेफर्स ब्रिटन वुड ट्विंस। IMF और वर्ल्ड बैंक कोऑपरेट कर चुके थे एक दूसरे के साथ, तो ये जो दोनों बैंक्स हैं, ये दोनों बैंक्स को ब्रिटन वुड ट्विंस कहा जाता है क्योंकि ये साथ साथ अपने सारे काम करती हैं। तो ये था हमारा ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस MNCs. MNCs is multinational corporation. MNC are large companies that operate in several countries at same time. The worldwide spread of MNC was notable feature in 1950 and 1960 as US business expand and high import tariffs imposed by different government force MNC to locate unit. This means MNC जो होती हैं वो लार्ज कंपनीज होती हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में एट द सेम टाइम अपना वर्क करती हैं। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ MNC वॉज नोटेबल फीचर इन। MNC जो है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है अभी तक, और ये बिटवीन 1950 1916 की बात है कि उसी कारण जो हमारा यूएस का बिजनेस था वो उस टाइम पर एक्सपेंड हुआ। यूएस में हमारा बिजनेस एक्सपेंड हुआ, यूएस में हमारी MNCs खुली एंड हाई इम्पोर्ट तारीफ इम्पोज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्स MNC टू लोकेट यूनिट। जितनी भी तारीफ इम्पोज करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा उनको MNC के अंदर लोकेट करने के लिए फोर्स किया गया। एंड नॉट लीस्ट बट लास्ट 2 decades the economy of world has changed a lot as country like Divine India and Brazil have achieved economic development and at the end जितने भी 2 last decades में जो जितनी भी इकोनॉमीज के अंदर चेंज आया, तो कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये जो तीनों कंट्रीज़ थी, इन तीनों कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इतना अचीव किया दैट कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फास्ट ग्रोथ होने लग गई, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने लग गए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। सो दिस इज़ डन फॉर नाउ वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 4 सून। सो गाइस, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो आपको वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गुड बाय, थैंक यू।